all jobs and roles and responsibilities, and what and all issues we have to highlight, what and all issues we have to find out, and what checks and what are the process and sequence of the work we have to find out in workplace. So presentation on QA/QC engineering. Next slide, please. Yeah, main QA/QC. QA means quality assurance and quality control. Quality assurance. Quality assurance can be defined as part of quality management focused on providing confidence that quality requirements will be fulfilled of, or other way, all the planned and systematic activities implemented within a within the quality system. It's a quality assurance means अभी अश्योर करने का हम लोग क्या अभी हम लोग ये क्लाइंट्स को और जो भी हमारा मींस क्लाइंट है उनको अश्योर करते हैं कि हम लोगों का सिस्टमेटिक क्वालिटी एश्योरेंस प्लान है उसके तरफ से हम लोग मींस हम लोग प्रोडक्ट देते हैं बोल के अश्योर करने का क्वालिटी कंट्रोल मींस the quality control can be defined as part of quality management focused on fulfilling quality requirements, while quality assurance related to how a process is performed. Quality control is more the inspection aspect. Quality management means quality control means mainly we whatever the process is going on that we have to take control on that on every each and every step of the work while going on process. So it is a quality assurance and quality control difference between that. And and main thing is it's a quality assurance means we have to assure that we'll give the good product, and quality control means while processing that work we have to control the quality complaints whatever are coming. Next slide, please. So course content will be like this. These are the topics which we are going to discuss each and every day for 21 days. Some of these topics will be explained detailedly. Now, means briefly, I am going to explain that one by one, all the topics. Next slide, please. So, concrete. So, main major part of the structure is concrete. So, what we are going to see in this means what and all ingredients we have to use for concrete, what is a concrete, and what means material storage and types of aggregate. Mainly, we are now widely we are using only manufactured sand and aggregates. That river sand has been stopped because manufactured sand should be in a proper way. That zone should be zone 2 for the concrete, and that and all we are going to see in the concrete. And this fine aggregate will be the main source. If we are using fine aggregate means that should be uh, proper, means source of material should be checked. If we used instead of m sand, if we use dust means that will be effect on strength of the concrete. And next part is admixture. Admixture will be like what type of admixture, what type of concrete we are using. If it is a normal concrete or if it is a means a higher grade concrete or SDC or SCC, depends on that. We are we are going to use the admixture. And for while processing concrete, what and all tools we have to use means what and all main major tools that mason and worker should have while doing the work. And next is after placing of concrete, what and all means method of placement of concrete, compaction of concrete, types of means tools will be used, and that is a part of this concrete topic. And next is importance of curing, what and all importance of curing and types of curing will be seen in this topic. And after that, initially whatever that we batch in concrete batching plant,
that should be tested, and that should be sent to the site on site. We have to check before it should be cohesive or not, or it is a workability and consistency of concrete. That and all we have to going to see in this topic. And tests of the concrete after hardening of concrete, what and all we have to do the tests, and what are the requirements of testings, and standards of means stand within the standards it is coming or not, that we are going to see in this concrete topic. And next slide please. So specialized farmer, this is main important topic. The farmer, if so many types of farmers will be there, means conventional, doka or peri, means alu farm, maiwan work, and ulma shuttering work. These and all, whatever that columns, slabs, and shear walls, core walls, what and all we are using, that shuttering different type of material, specialized formwork in means innovative formworks, what and all we are going to see in this topic. This is a specialized formwork system, and this is very interesting topic. You can see in this different types of formwork systems. Next slide please. Next slide. Yeah, major part of the this construction work, earthwork. In this, we can see before doing means earthwork excavation or something, we have to go for the block leveling and or boundary wall constructions, and whatever that sequence of the excavations, methods of the excavations. After that, if it is a soft excavation or hard excavation, and hazards, what and all we'll see in this while doing excavation, and excavation process, which process we are going to implement, and soil testing, soil investigation, and in that, if it is a loose soil or peripherally we'll get the separate building, means what and all we have to take care of the structures, our structures. If we are going to deep excavation, we have to means soil strengthening or soil nailing or shoring piles we have to introduce, because of to strengthening of soil, and how to cut that soil, slope cutting, step cutting, that and all we are going to see. And next, contouring of the soil, means ground, and setting out, and stability of soil will be seen in this topic. And and process of the, if it is a hard rock, blasting will be the process, and that we are going to see. And checks, whatever the checks during the excavation we have to do as a quality engineer. And uh, method of quality inspection in excavation, these are going to main part of this excavation topic. And next slide please. Yeah, after excavation we are going for the block work. This topic will be the means block work. What and all checks we have to do, if it is conventional shuttering, before construction of block work, what we are going to see in this, before marking course, what and all requirements we have to get, means tools, materials, and surface preparation. Before starting of block work, we have to do first entire whatever that protruded rods and tie rod hole packings, everything has to be done. Slurry cleaning, the 100% de-shuttering should be done. That is a block work before starting of block work. And first we have to do hacking. Hacking should be in a 80 indents per square feet,
the hacking gun should be running 2 to 3 mm depth. There are all standard things we are going to see in this block work. And after hacking, that should be done with the cement mortar, means cement slurry, 1:3 splatter dash with the coarse sand and cement. One part of cement and 3 parts of sand, coarse sand we have to take. Three course we have to do. Small course as per the layout drawing, block work drawing. And after that, we have to check the room dimensions. That is a part of the quality engineer. That room dimension and what and all tools we have to require. Line dories, spirit level, straight edge, pointing tool, everything we measure and everything that standard sizes, and we have to know about that standard sizes. And next thing is standardized work process in block work and types of block work: hollow blocks, solid blocks, and their strengths. Means getting the source, we have to check all those things: sand, cement, and block work, strength of the block work. And if it is we are doing means in this sequence during construction, we have to check this mortar is mixed properly or not, means as per the requirement 1:5, 1:6, as per the standardized mix proportion. We have to check that one. And e- for every day there should be a 1 meter of height that should be casted. And after 1 meter we have to put band of concrete with using reinforcement. That and all standardized process. And pointing of 10 mm with a 10 mm mortar thickness. And after 1 meter of this block work, we have to fix the electrical conduits. That sequence should be followed, and marking of conduit location. And next process will be after that 1 meter, next up to this height of the beam bottom should be casted, means block work should be done. And after that there will be a curing process, and that should be taken care. And if any lintels are coming, that should be checked. What are the door sizes, standard sizes of the door? And if it is if we are getting means less thickness or high thickness in beam bottom, that packing course should be in below of means below of, not should not be below of beam, it should be middle of the block work wall. And for this block work mortar, nailing test should be done. That is the process of this block work, and that test can be done with the nail. We can insert that nail with the driving. That strength will be find out with the nailing test. And any efflorences are coming, that should be checked. Means if improper curing is done, efflorence will be happening. This and all this in block work topic will be seen. And next slide, please. Yeah, internal plastering. Internal plastering will be done after the block work. Block work before after block work after 7 days of curing, what we have to do is next process will be the plastering work, internal plastering. That before that we have to fix expanded metal mesh. There's a rhombus mesh that is between block work and it's a concrete. In two different materials will be there. There in joints, vertical or horizontal joints, bottom or top. We have to fix the this rhombus mesh. That is the sequence of work. And while fixing that, we have to use 1:3 mortar. After that fixing, that roughening of this mesh should be done. And that nailing and this roll plug and fixtures, the thickness 2 mm thickness, 20 mm by 20 mm size, and nails 1.5 inch nails, and drilling with the drill bit for the concrete, and that should be staggered manner.
That is means size should be 300 mm, one nail to one nail. That and all standards will see in this plastering work. And after that, corner bead. That is a corner bead that should be fixed for to avoid this any damages of corners after the this plastering and all. That should be exposed in corner. Every each and every corner we have to fix this corner bead. This should be done in 1:2 proportion. And after this, 3 days of curing should be done for this rhombus mesh and corner bead. And after this, bull marking will be done, and electrical model box fixing, everything after completion of this. Next will be the plastering work will be started. Bull thickness will be means with the right angle we have to fix the bull, and we have to check that any thickness variations will be there, that we have to find out in this. And during plastering we have to check whether proper workmanship is done or not. As a part of QA QC engineer, that should be checked. And mixing proportions, and opposite to opposite wall we have to do the plastering, internal plastering, not continuously we have to do. And any packing, electrical chipping has been done, that should be packed with the concrete, and mesh should be fixed. And that is the sequence of work. And after completion of plastering we have to cure the for 7 days, at least 7 days. Okay, I will use Hindi language. Okay. नेक्स्ट स्लाइड जाइए. एक्सटर्नल प्लास्टिंग. अभी एक्सटर्नल प्लास्टिंग करने से पहले, बिफोर प्लास्टिंग, हम लोग क्या करना है, पहले हम लोग बुल फिक्सिंग करते हैं. बुल फिक्सिंग करने से पहले स्लरी क्लीनिंग, बाद में हमारा जो जो भी फोम शीट है, टाइरॉड होल पैकिंग है, वो सभी सरफेस प्रिपरेशन में आता है. सभी होने के बाद सभी एलिवेशन ड्राइंग लेके उनको क्रॉस चेक करके लेना है. एज ए पार्ट ऑफ क्वालिटी इंजीनियर हम लोग चेक करना है कि बराबर एलिवेशन के हिसाब से स्ट्रक्चर है कि नहीं, यानी डिजाइन कुछ भी है तो वो चेक करके लेना है. उससे पहले प्लास्टिंग से पहले सरफेस प्रिपरेशन होने के बाद हैकिंग, सेम प्रोसेस हैकिंग जो इंटरनल प्लास्टिंग में करता है. 80 इंडेंट्स पर स्क्वायर फीट, वो 2.5 सेंटीमीटर लेंथ और 2 to 3 mm डेप्थ रहना है. बाद में क्रॉस स्टिच जैसा उसका ये हैकिंग रहना है. बाद में ये हैकिंग होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, वो भी ब्लॉक वर्क रहा तो बीम और एक्सटर्नल सरफेस में भी ये रोहम्बस मेश जो भी फिक्स करना है वो फिक्स करके लेना है. क्योंकि वो क्रैक्स कुछ जॉइंट में डिफरेंट ब्लॉक वर्क और कंक्रीट सरफेस के बिटवीन में वो थोड़ा दिन के बाद क्रैक्स आने का चांसेस रहता है. तभी क्या करना पड़ता है, हम लोग ये मेश फिक्स किया तो थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं क्रैक को, इसलिए ये मेश फिक्स करते हैं. बाद में आपको अगर आर्किटेक्ट सजेस्ट किया तो कॉर्निस आता है, एक्सटर्नल साइड कॉर्निस. ये कॉर्निस क्यों लगाता है बोला तो, अभी इन केस ये कन्वेंशनल शटरिंग वो करके अगर वो हम लोग कंट्रोल पॉइंट्स मींस हमारा जो भी वर्टिकलिटी है बिल्डिंग है वो चेक करने के बाद हमको डिफरेंस आया, एक फ्लोर से इतना 15 फ्लोर एग्जांपल, उसमें से हमको बहुत डिफरेंस आ रहा है, प्लास्टिंग थिकनेस ज्यादा आ रहा है. इनकेस सपोज 70-80 mm थिकनेस आ रहा है, हम लोग क्या कर सकते हैं, ये कॉर्निस एंटायर बिल्डिंग सराउंडिंग ये 100 by 100 कॉर्निस, 125 by 125 और 150 by 150, एक मिडिल सेंटर में एक दो डबल कॉर्निस, सिंगल कॉर्निस लगाया तो हमको क्या कर सकते हैं, हम लोग और थिकनेस को डिवाइड करके ले सकते हैं, ऊपर से ऊपर को, नीचे से नीचे को डिवाइड करके. ये बेटर ऑप्शन है इन केस थिकनेस ज्यादा आ रहा है प्लास्टिंग में, वो एलिवेशन वाइज भी आपको लुक अच्छा दिखेगा.
ये मेनली एक्सटर्नल प्लास्टिंग में ये बहुत बिल्डर्स लोग करते हैं, और बहुत अच्छा भी दिखता है वो एक्सटर्नल कॉर्निस। बाद में इनकेस स्टॉपर बिल्ड, वो भी बेटर ऑप्शन है। इफ इन केस हम लोग किधर तो इधर से पूरा एक 15 फ्लोर है, उतना एक ही वन शॉट में कर नहीं सकते एक वॉल में। हम लोग एक लिमिट फिक्स करके लेने का इतना एक, और इसका एक मैसन इतना कर सकता है, इतना लोगों को छोड़ा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक लेवल पे हमारा ये स्टॉपर बिल्ड बोल के आता है। वो वो मेश जैसा रहता है, और 100 बाई 100 mm एक स्ट्रिप रहता है, एल्यूमिनियम स्ट्रिप, उसको नेलिंग करके फिक्स करके ले, या तो लेवल में हम लोग उधर तक लाके स्टॉप किया तो नेक्स्ट डे वी कैन स्टार्ट विथ बिलो फ्लोर। सो ये सभी एक्सटर्नल में आता है। और एक्सटर्नल प्लास्टिंग करने से पहले बुल फिक्स करके बुल रजिस्टर मेंटेन करना है। एज ए क्वालिटी इंजीनियर, बुल रजिस्टर कितना थिकनेस आ रहा है, मटेरियल कंजप्शन कितना है, वो कॉस्टिंग वाला देखेगा। पर हम लोगों को थिकनेस ज्यादा है तो एक्चुअली हम लोग दो कोट प्लास्टिंग करते हैं, फर्स्ट कोट और सेकंड कोट, रफ कोट और ये हमारा फिनिशिंग कोट। उसमें से हम लोग क्या करना है, केमिकल यूज करना है, एसबीआर लैटेक्स, ऐसा वाटर प्रूफिंग केमिकल जो वो लीकेज को अरेस्ट कर सकता है और वर्केबिलिटी ऑफ प्लास्टिंग ज्यादा कर सकता है। और फर्स्ट कोट कितना, सेकंड कोट कितना थिकनेस रहना है, कौन सा आईएस कोड यूज करना है, वो सभी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन में वो एक टॉपिक है उसमें बता देगा आपको। और और स्टॉपर बिट का साइज, कॉर्नेट्स कैसा लगाते हैं, कैसा करते हैं, बाद में एलिवेशन वाइज क्या क्या हम लोगों को चेक करना है, बिफोर आफ्टर डूरिंग क्या क्या चेक करना है, बाद में इन केस एनी क्रैक्स आया कैसा रेक्टिफिकेशन करना है, एक्सटर्नल साइज। बाद में हम लोग सेफ्टी वाइज भी देखने गया तो सेफ्टी भी चेक कर सकता है, वो सभी एक्सप्लेन करेगा एक्सटर्नल प्लास्टिंग का। बेस्ट केमिकल कौन सा है, प्लास्टिंग के लिए कौन सा एम सैंड यूज करना है। बाद में इफ इट इज, अभी तो रिवर सैंड कम है, अभी हम लोग एम सैंड प्लास्टिक सैंड यूज कर रहे हैं तो कौन सा आईएस कोड यूज करना है, वो सभी डिटेलली बताएगा। और पूरा एक डिटेल्ड टॉपिक। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। पेंटिंग, अभी इंटरनल प्लास्टिंग हो गया, क्यूरिंग कंप्लीट हो गया, हम नेक्स्ट प्रोसेस क्या जाते हैं, पेंटिंग। पेंटिंग से पहले टाइलिंग हो जाएगा, वाटरप्रूफिंग, वो सभी वो पार्ट बाय पार्ट वो टॉपिक्स है, वो एक्सप्लेन करेगा सीक्वेंस वाइज। सो मेनली पेंटिंग में क्या देखना है हमको, मेन थिंग इज हमको पहले वो कॉर्नर्स सभी, इनकेस प्लास्टिंग किया कॉर्नर्स हमारा बराबर एग्जैक्ट लाइन नहीं आएगा तो तभी क्या करते हैं हम लोग, वी कैन यूज पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जो भी कॉर्नर है वो स्कर्टिंग लेवल से एक 750 और 1 मीटर, और एक्यूरेट कॉर्नर लाइन चाहिए आपको तो क्या करना है, पूरा कॉर्नर सभी कॉर्नर लाइन को पीओपी में करके लेना है। तभी क्या होता है, शार्प लाइन आएगा, दिखने में एस्थेटिकली आपको अंडुलेशंस नहीं दिखेगा। अभी ये फायर बॉक्सिंग भी इंटरनल में करेगा, फायर बॉक्सिंग करने के बाद क्या होगा, वो अंडुलेशंस आएगा, लेवल डिफरेंस रहेगा, तभी क्या करना है, ये पीओपी, वो बॉक्सिंग के लिए पीओपी यूज करता है, पर वर्टिकली कॉर्नर लाइन और जो एक्सपोज्ड कॉर्नर लाइन जो भी है, वो पक्का लाइन के लिए हम लोग पीओपी यूज करके थोड़ा, मतलब नॉट मोर देन 6 mm, वो 6 mm से ज्यादा हो गया तो वो क्रैक आएगा, नहीं तो डैमनेस जैसा आके पूरा निकल जाएगा। इसलिए 6 mm से कम थिकनेस में यूज करना है। वो तो फिर वो माई वन शटरिंग है तो भी आपको इन केस वो पैनल टू पैनल थोड़ा अंडुलेशन आता है, ग्राइंडिंग किया तो भी कॉर्नर लाइन थोड़ा एसएल लेवल में, वो सभी में थोड़ा आपको मैच करने के लिए पीओपी करना ही पड़ता है। थोड़ा तो 750 और टॉप से 750 करके लेना है। उससे पहले जिप्रॉक यूज करो, पीओपी नहीं है तो जिप्रॉक यूज कर सकते हैं। बॉन्डिट अप्लाई करो, विद इन 10 days जिप्रॉक लगा के आपको ये रेडी रहना है। बाद में हम लोग क्या करना है, प्राइमर, प्राइमर ऑफ पेंटिंग से पहले प्राइमर करना है। बाद में पट्टी, अक्रिलिक पट्टी यूज करना है, तो कितना थिकनेस, कितना कोट, कौन सा सैंडिंग पेपर यूज करना है, बाद में कैसा सैंडिंग करना है, बाद में जेबी जंक्शन बॉक्स,
वो बाद में वो आपका फैन पॉइंट्स, एसी पॉइंट्स, सभी लोकेशंस, जो पेंट करने से पहले जो भी सीमेंट वर्क, रेक्टिफिकेशन वर्क है, वो सभी देख के लेना है। जाम्स, डोर जाम्स सभी बराबर है कि नहीं, ओपनिंग्स, डोर विंडोज ओपनिंग्स बराबर है कि नहीं, रेलिंग फिक्स हुआ कि नहीं, डबल डबल काम नहीं होने का। अभी पेंट करने के बाद जाके विंडो ग्रिल निकालो, बाद में चिपिंग करो, कंक्रीट डालो, बाद में फिर से पेंट के ऊपर मसाला गिर जाएगा। इसलिए सीक्वेंस वाइज जाने का, सीक्वेंस वाइज में गया तो आप काम भी एक्यूरेट कर सकता है, बाद में वो पैसा भी, खर्चा भी बचेगा, डबल डबल काम होने का बचाएगा। वो सभी हाईलाइट किया तो एज ए पार्ट ऑफ क्वालिटी जॉब वो सभी देखना पड़ता है, सीक्वेंस बराबर फॉलो हो रहा है कि नहीं। बार बार ट्रेनिंग देने का उनको, लेबर्स को, इंजीनियर्स को ट्रेनिंग देने के बाद क्या होता है, वो लोग सीक्वेंस फॉलो करता है, एटलीस्ट 50-60% तो आदमी अडॉप्ट होगा उसमें। इसलिए वो पेंट करने से पहले हम लोगों को क्या देखना है, पूरा एक बार अंडुलेशंस, वॉल अंडुलेशंस, जो भी सीमेंट वर्क पेंडिंग है, तो फ्लैट में पेंट चालू नहीं करने का। चालू करने किया तो फिर से डबल डबल काम होगा। तो उससे पहले हम लोग ये पेंटिंग के पहले, बाद में पट्टी होने के बाद कौन सा सैंडिंग पेपर यूज करना है, कैसा मेथड में सैंडिंग करना है, कौन सा हलोजन, कौन सा डिस्टेंस में पकड़ना है, सीलिंग से कितना पकड़ना है, वॉल से कितना पकड़ के देखेगा तो अंडुलेशंस दिखेगा आपको। पट्टी होने के बाद दिखेगा कि प्राइमर होने के बाद दिखेगा, फर्स्ट कोट पेंट होने के बाद दिखेगा अंडुलेशन। वो सभी चेक करने के लिए सीक्वेंस में बताएगा। पेंटिंग पेंटिंग जब टॉपिक आएगा मैं बता के देगा। सो ये हुआ पेंटिंग टॉपिक का। और नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड। सो पेंटिंग, एक्सटर्नल पेंटिंग में भी आगे टॉपिक है टाइलिंग। टाइलिंग वर्क, इसमें कौन कौन सा टाइल यूज होता है, इफ इन केस टाइलिंग, टाइलिंग मेजर पार्ट है। जो भी टाइलिंग वर्क करने से पहले हमको क्या करना है, टाइल लॉट आया, उसका जो भी अप्रूव्ड ब्रांड है, कलर है, जो सैंपल बनाता है एज ए क्वालिटी इंजीनियर, आर्किटेक्ट से हमको अप्रूव्ड सैंपल मिलता है। उसके हिसाब से हम लोग मैच हो रहा है कि नहीं, टेक्सचर, उसका कलर, डिफरेंस नहीं होने का। पैसा लॉट आने के बाद अनलोडिंग से पहले हम लोग क्या करना है, वो सैंपल पकड़ के वो विद ब्रांड नेम, उसका कोड, वो सभी मैच करके देख के बाद में अनलोडिंग करना है, एक दो बॉक्स चेक करके। क्या चेकिंग सीक्वेंस है वो, मतलब वार्पेज कितना अलोवेंस है, मेजरमेंट, बाद में उसका टेक्सचर और फिनिशिंग, बाद में वो टाइल के ऊपर स्टेन्स कुछ है, डैमेजेस है, कितना अलोवेंस है, बाद में टाइल्स के सभी चेक करके अनलोड करके बाद में उसका एमटीसी रख के लेना है, सर्टिफिकेट। बाद में वाइल वो 3% ऑफ द वो लॉट रहता है, वो हम लोग वो कोड के हिसाब से उसको सेपरेट रखना है टाइल्स मेंटेनेंस के लिए। और रखेगा तो इन इफ इन केस वर्क कंप्लीट होने के बाद हैंडिंग ओवर देना है क्लाइंट को, तभी थोड़ा एक दो टाइल डैमेज हुआ रहता है, सेम बैच का टाइल हम लोग यूज करके मैच कर दें। अगर बैच वाइज बैच थोड़ा कलर वेरिएशन, टेक्सचर वेरिएशन आ जाएगा, तभी मुश्किल हो जाएगा, क्लाइंट एक्सेप्ट नहीं करेगा। अभी टाइल्स में, टाइलिंग में अडेसिव यूज कर रहा है कि टाइल अडेसिव यूज कर रहा है या सीमेंट मोटर यूज कर रहा है, सीमेंट वो टाइल्स वर्क पहले क्या करना है, सरफेस कैसा प्रिपेयर करना है, पुल मार्क किधर से लगाना है, क्या क्या वर्क कंप्लीट रहना है। इफ इन केस एडहेसिव यूज कर रहा है, हम लोग क्या मोटर का स्क्रीड डाल के लेना, पहले बुल थिकनेस के हिसाब से हम लोग नॉर्मली मैक्स टू मैक्स 60-65 mm थिकनेस से हिसाब से करते हैं मेन फ्लोरिंग। मेन फ्लोरिंग कैसे स्टार्ट करना है, एज पर ड्राइंग, ड्राइंग अप्रूव्ड ड्राइंग, जीएफसी ड्राइंग लेना है, वो किधर से चालू करना है, इफ इट इज अ diagonal shaped tiles or
रेक्टेंगल शेप का करना है, किधर से चालू करना है, डायगनल है तो कॉर्नर से, रेक्टेंगल है तो सेंटर ऑफ, नहीं तो आर्किटेक्ट मार्क किया रहता है इधर से चालू करो, कट पीस इधर दो, ये कोने में दो। इफ इट इज कट पीस ज्यादा एक दोनों साइड छोटा छोटा पीस आ रहा है, उसको एक बार डिवाइड करके उसको हाईलाइट करना है, मैनेजमेंट को हाईलाइट करना है टू सेव वेस्टेज ऑफ द टाइल्स। वो अभी टाइल्स लगाने के बाद पेपर ज्वाइंट करना है कि स्पेसर ज्वाइंट करना है, वो सभी मीन्स आर्किटेक्ट के हिसाब से हम लोग वो कैसा कैसा मीन्स टाइल टाइल लेइंग चलता है, वो सभी इस टॉपिक में बता के देगा। बाद में बालकनी टॉयलेट में कौन सा सेरामिक टाइल्स यूज होता है, बाद में उसको कैसा करना है, कैसा टेस्टिंग करना है, स्लोप्स कितना रखना, स्लोप्स इन बिल्डिंग, बालकनी में कितना, टॉयलेट में वेट एरिया में कितना रहना है, ड्राई एरिया में कितना रहना है। वो स्टैंडर्ड स्लोप्स है, उसमें ड्राई एरिया में आपको 1:80, वेट एरिया में 1:60 आता है, बाद में बालकनी में 1:100, बाद में टेरेस में 1:120, ऐसा बोल के स्टैंडर्ड स्लोप्स हमको फॉलो करना पड़ता है। हम लोग बालकनी में टॉयलेट में टाइल लगाने से पहले हमको क्या क्या चेक करना है, मदर स्लैब को, इफ इन केस टॉयलेट है बालकनी है, हमको क्या करना है, स्क्रीडिंग से पहले हमको पॉन्डिंग टेस्ट करना है, उससे पहले बोर पैकिंग करके लेना है। बोर पैकिंग कैसा करते हैं, कौन सा स्लीव आएगा, पोजीशन ऑफ स्लीव, कट आउटलेट, बाद में हमारा वो टाइल पोजीशन कॉर्नर में आता है कि टाइल सेंटर में आता है, कटिंग करने के लिए मुश्किल नहीं होने का है। दो टाइल के बीच में आ गया तो प्रॉब्लम हो जाए, इसलिए टेम्पलेट्स यूज करना है, वुडन टेम्पलेट्स, वो प्लाईवुड से कट करके मार्किंग करके हमको टेम्पलेट्स यूज करना है। वो टाइल्स ताकि हमको एग्जैक्ट लोकेशन मिले ट्रैप का, तो दिखने में एस्थेटिकली अच्छा दिखे। और स्लोप कैसा मेंटेन करना है, स्क्रीड में ही स्लोप करना है, बाद में वाटर प्रूफिंग वर्क, उससे पहले पॉन्डिंग के बाद लीकेज हुआ तो क्या करना है, वो सभी एक बाय एक एक्सप्लेन करेगा। बाद में प्लम्बिंग, प्रेशर टेस्ट, इफ इट इज टॉयलेट है, टॉयलेट में क्या क्या करना है, क्या क्या देखना है, उसके वर्क क्या क्या कंप्लीट रहना है। बाद में प्रेशर टेस्ट करते हैं, प्रेशर टेस्ट में क्या कितना टाइप का प्रेशर, 4 बार टेस्ट होता है प्रेशर टेस्ट फॉर प्लम्बिंग। अभी हमारा हॉट वाटर लाइन है, फ्लश लाइन है, बाद में आपका ये वॉश बेसिन लाइन, सभी को एक एंड कैप लगा के हमारा गेज से, प्लम्बिंग गेज से हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर टेस्ट करते हैं पहले स्केल्टन में, बाद में आफ्टर पैकिंग ऑफ मोटर, बाद में टाइल होने के बाद, बाद में लास्ट वन बिफोर सीपी सैनिटरी मतलब ग्रिड सीलिंग, ग्रिड चैनल लगाने के बाद हमको क्या करना है, प्रेशर टेस्ट करके लेना है, क्योंकि इनकेस वो ड्रिलिंग करने के टाइम लीकेज आ गया तो, और वीक जॉइंट है, वो सॉलेंट लगा के वो पाइप ज्वाइन किया रहता है, पर भी हमको क्रॉस चेक करके लिया तो वी कैन अवॉइड डैम्पनेस, लीकेजेस, इस तरफ का तकलीफ हमको नहीं आएगा। ये प्रिकॉशनरी मेजर्स लिया तो स्ट्रिक्टली फॉलो किया तो सीक्वेंस, हम लोग ये अवॉइड कर सकते हैं कि डैमेज लीकेज बाद में टाइल तोड़ के ये निकालने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगा। तो एज अ क्वालिटी इंजीनियर ये सब सीक्वेंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा, तभी हमको इश्यूज कम मिलेगा और क्लाइंट कंप्लेंट्स भी कम मिलेगा। इफ इन केस वॉल टाइल है, वॉल टाइल करने से पहले टाइल मार्किंग करके लेना है, टाइल लेआउट से हिसाब से मार्किंग करने के बाद राइट एंगल, वो सरफेस कैसा है, बाद में वो प्लम्बिंग लाइन का पोजीशन बराबर है क्या नहीं ड्राइंग के हिसाब से, बाद में लाइट पॉइंट्स वो सभी करेक्ट है कि नहीं, वो सभी चेक करके लेना है। बाद में हाइलाइटर, एक एक टाइम क्या होता है आर्किटेक्टर हाइलाइटर एक साइड, बाद में नॉर्मल टाइल एक साइड देता है, बाद में हम लोग को एक ड्रॉप रहता है मेन फ्लोर से इतना, ये टॉयलेट में ड्रॉप रहेगा, उसमें एल एंगल यूज करना है, वैसा सभी। बाद में टू डिफरेंट टाइल आया, उसमें एस एस स्ट्रिप 6 mm का वो यूज कर सकते हैं। बाद में कॉर्नर में पीवीसी कॉर्नर भी नॉर्मली आप सुना होगा, वो सभी यूज कर सकते हैं। नया नया मटेरियल्स है, नया नया मीन्स टूल्स है, कैसा अडेसिव यूज करना है, मोटर में कितना थिकनेस आता है, थिक बेड सिस्टम थिन बेड सिस्टम आता है,
बाद में तीन बेड सिस्टम में वो ट्रैवल कैसा वाला यूज करना है, टूथ ट्रैवल्स, एमएम का, 4 mm, 6 mm, 8 mm, वैसा डिफरेंट टूल्स है। बाद में टाइल्स में हॉलोनेस कितना अलाउंस है, कितना अलाउंस हम लोग छोड़ सकते हैं। अगर इन केस क्लाइंट आया है, मुझे ये टाइल्स निकालना ही, वी कैन शो द स्टैंडर्ड मेथड। हमको एज पर ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड 20% अलाउ है। ये सभी स्टैंडर्डाइज्ड सीक्वेंस हम लोग सीख के ले सकते हैं। बाद में ये टाइल लगाने के बाद टाइल हॉलो साउंड अवॉइड करने के लिए क्या करना है, उसको प्री वेटिंग करना है थोड़ा। if it is vitrified tile also, we can wash that one, and we have to apply back puttering of this tile। फ्लोर में लगाया 4 mm टू ट्रॉवल से या 6 mm से किया। बाद में बैक पटरिंग टाइल के पीछे भी लगा के हम लोग बराबर फिक्स किया, तो वी कैन अवॉइड सम 90% ऑफ हॉलोनेस साउंड। 90% ऑफ हॉलोनेस हम लोग अवॉइड कर सकते हैं इसमें। सो दिस इज अ मेन पार्ट्स। टाइलिंग, टाइलिंग बहुत ज्यादा है, कौन सा टाइल डबल चार्ज विट्रीफाइड टाइल्स, कौन सा विट्रीफाइड टाइल्स, बहुत टाइप का टाइल्स है, वो कैसा यूज करना है, और उसका वार्पेज। मेन हम लोग इश्यूज क्या फेस करेंगे, वार्पेज, हॉलो साउंड, मेनली क्लाइंट्स वही देखेंगे। बाद में आपका ये डैमेजेस, वो सभी अवॉइड करना है, प्रोटेक्शन कैसा करना है, वो सभी देखने के लिए ये टॉपिक, टाइलिंग टॉपिक में मैं पूरा एक्सप्लेन करके देगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो मार्बल ग्रानाइट, आपको मार्बल और ग्रानाइट, मेनली ग्रानाइट्स तो यूज करते ही है नॉर्मली, वो कोपिंग के लिए, विंडो ग्रिल में, बालकनी रेलिंग के नीचे कोपिंग में हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं। उसमें नोजिंग कितना आएगा, बाद में कैसा फिक्स करते हैं, वही फ्लोरिंग लॉबी में नॉर्मली ग्रानाइट यूज किया तो, स्टेयरकेस में ग्रानाइट यूज किया तो उसमें कैसा मोटर यूज करना है, मोटर लेइंग करने के बाद उसमें व्हाइट सीमेंट यूज करना है। वो साधारण लिए तो उसमें क्या होता है, डार्किश पैचेस आ जाएगा। नॉर्मल ग्रे सीमेंट यूज किया, इसलिए व्हाइट सीमेंट यूज करना है। बाद में ग्रानाइट आने के बाद मेनली एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा, अगर ग्रानाइट रिसीव हुआ अनलोडिंग से पहले, वो जो अप्रूव्ड सैंपल है वो सैंपल रख के हम लोग टेक्सचर मिल रहा है कि नहीं। बाद में वो उसका मार्क्स, पैचेस, क्रैक्स सभी रहेगा। उसमें ग्रानाइट में भी आपको एक एक बार वो एंट्री लेवल ऑफ बिल्डिंग में क्या होगा, होन्ड फिनिश, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिनिश आएगा, होन्ड फिनिश, बाद में रिवर बेड वॉश, वैसा डिफरेंट इसमें ही साधारण में ही आएगा। बाद में आपको सैंडस्टोन मिलेगा, वो ब्राउन कलर का, डेजर्ट ब्राउन, ऐसा ग्रानाइट्स, डिफरेंट टाइप्स ग्रानाइट्स है, उसको आप लोग जानकारी रखना है। बाद में थिकनेस उसका बराबर चेक करके लेना है। उसका एक्चुअल थिकनेस जो हम लोग ऑर्डर किया था 18 mm, प्लस और माइनस 2 mm इज एक्सेप्टेबल, वो स्टैंडर्ड। बाद में उसमें एक एक बार मार्क रहता है, मार्क में मार्क रहा तो एक्सेप्ट नहीं करने का। पैचेस, ब्लैक पैचेस, वो सभी डिफेक्टिव है, आर्किटेक्ट के हिसाब से वो सभी नहीं रहना है। और रहा तो क्या होता है, एस्थेटिकली हमको डिफरेंट दिखेगा। और मेन चीज है ये होन्ड फिनिश। होन्ड फिनिश मतलब थोड़ा आपको वेलवेट, वेलवेट टाइप फिनिश आएगा, वो होन्ड फिनिश। बाद में रिवर बेड वॉश, वो नॉर्मली वो रफ रहेगा, वो वॉश फिनिश रहेगा। बाद में कौन सा पॉलिशिंग के लिए कौन सा टूल्स यूज करना है, कौन सा हमको वो पैड पैड रहता है, वो व्हील व्हील का वो स्टोन रहता है, वो कौन सा साइज का रहता है, वो पॉलिश के उसके हिसाब से हम लोग यूज करना पड़ेगा। ये सब हम लोग ग्रानाइट, मार्बल एंड ग्रानाइट में हम लोग देख सकता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड। सो वुड, वुड वर्क्स, वुडन वर्क्स, नॉर्मली
सम ऑफ द बिल्डर व्हाट दे विल डू, वो लोग अपना ही इन मीन्स प्रोडक्शन, ये वुड का प्रोडक्शन सभी रहता है, डोर और विंडो का। सो इफ इट थोड़ा बिल्डर्स लोग बाहर से मंगाता है, तभी तभी हम लोग क्या क्या चेक करना है। डोर रिसीव हुआ, डोर शटर रिसीव हुआ, फ्रेम रिसीव हुआ। फ्रेम रिसीव होने के बाद हम लोग देखना है उसका साइज, एग्जैक्ट साइज कितना है, एज पर पीओ कितना है, परचेस ऑर्डर के हिसाब से वो साइज है क्या नहीं, मेजरमेंट डायमेंशन चेक करना है। बाद में उसका वुड का फिनिश कैसा है, बाद में कौन सा वुड है, बाद में हम लोग ये उसका वेंडर का स्कोप क्या है। वो इफ वो वुड नॉर्मली हम लोगों को फंगस अटैक होने का चांसेस रहते हैं, वो लोग प्राइमर नहीं अप्लाई किया तो ऐसा ही भेज दिया, वो थोड़ा चांसेस है वो बेंड होने का, वीनियर सरफेस उसका वीनियर जो है पील ऑफ होने का, बबल्स आने का। तभी क्या होता है, वीनियर थिकनेस हमारा वर्क ऑर्डर के हिसाब से कितना है वीनियर का थिकनेस, कितना वो लोग यूज किया है, कौन सा क्वालिटी का वीनियर यूज किया है, वो सभी चेक करना पड़ता है। बाद में शटर रिसीव हुआ तो उसमें शटर का थिकनेस, उसका डेंसिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। बाद में हमारा पास अभी फ्रेम और शटर मिला तो हमारे पास वो मॉइस्चर मीटर रहेगा एज अ क्वालिटी जो मॉइस्चर मीटर लेके हम लोग उसका वुड वुड का मॉइस्चर चेक कर सकते हैं। वो मॉइस्चर एज पर स्टैंडर्ड 12% के ऊपर रहा तो देयर में भी चांसेस ऑफ वो थोड़ा ड्राई होने के बाद बेंड होने का, बाद में वो सरफेस पील ऑफ होने का चांसेस रहता है। तो इसलिए वो मॉइस्चर टेस्ट करना ही पड़ेगा। वो एक टूल है, वो उसका नीडल्स रहता है, वो इमीडिएट डिजिटली दिखा देगा मॉइस्चर मीटर। ये वुडवर्क्स का पीपीटी में मैं आपको वो टूल्स के बारे में एक्सप्लेन करेगा, दिखाएगा। अभी ये मॉइस्चर के बाद हमारा वो लॉक्स, लॉक्स फिक्सिंग का कौन सा पोजीशन में कितना हमें आएगा, बाद में आई पीस, मैजिकल आई, वो किधर फिक्स होना है, कितना हाइट में फिक्स होना है, लॉक कितना में रहना है। बाद में रिसीव होने के बाद राइट साइड है क्या लेफ्ट साइड ओपनिंग वाला है, कौन सा फ्लैट को आया है, और एज पर ड्राइंग कौन सा में ओपन हो रहा है, लेफ्ट साइड या राइट साइड, वो सभी पार्ट ऑफ अ क्वालिटी जॉब, वो सभी हम लोग चेक करना पड़ता है। बाद में वीनियर सरफेस, वो ऊपर का टेक्सचर, अगर शटर का टेक्सचर कुछ लाइंस लाइंस है उसका, वो बराबर टेक्सचर मैच हो रहा है कि नहीं, वो सभी चेक करना पड़ता है। वीनियर का थिकनेस, सरफेस फिनिश सभी। बाद में वो रिसीव होने के बाद स्टॉकिंग, स्टॉकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो कैसा स्टॉक करना है, वुडन पैटर्न्स रख के एक एक के बीच में हॉरिजेंटली प्लेस करना है शटर फ्रेम्स, कैसा प्लेस करना है, स्टैकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर हम लोग मॉइस्ट एरिया में स्टैक कर दिया तो चांसेस ऑफ डैमेजिंग द वुड वर्क्स, मीन्स वुडन मटेरियल्स। सो ये लोग, ये सभी हम लोग एज ए क्यूए क्यूसी इंजीनियर हम लोग क्या क्या पार्ट बाय पार्ट सीक्वेंस बाय सीक्वेंस चेक करके हम लोग क्लियर डॉक्यूमेंटेशन रहना। इन केस एनी डैमेजेस, एनी डिफेक्ट्स फाउंड इन wooden means wooden works or wooden products, that should be highlighted immediately, immediate हमको highlight करना है, immediate उसको highlight करके मैनेजमेंट या रिपोर्टिंग अथॉरिटी वो सभी उसको उनको हाईलाइट करके इसको इश्यूज को राइज करना पड़ेगा, नहीं तो आगे के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। ये सभी सीक्वेंस ऑफ वर्क ऑफ क्वालिटी इंजीनियर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो नेक्स्ट इज बीडीएफ फ्लोरिंग। आप लोग जानते ही होंगे, पढ़े भी होंगे, वीडीएफ फ्लोरिंग ये वैक्यूम डी वाटर फ्लोरिंग, वीडीएफ फ्लोरिंग, आईपीएस फ्लोरिंग, इंडियन पैटर्न स्टोन। वीडीएफ वीडीएफ फ्लोरिंग मेनली हम लोग बेसमेंट, रेसिडेंशियल बिल्डिंग है तो बेसमेंट, बेसमेंट में कार पार्किंग एरिया, उसमें सभी हम लोग वीडीएफ यूज यूज करते हैं नॉर्मली। और वीडीएफ यूज करने से पहले हम लोग क्या क्या देखना पड़ेगा हमको। अगर लोअर बेसमेंट है, आइसोलेटेड फुटिंग है, सॉइल बैक फिलिंग किया हम लोगों को,
कॉम्पैक्शन टेस्ट करना है। नॉट ओनली प्रॉक्टर डेंसिटी, हम लोग वो प्रॉक्टर डेंसिटी, सम ऑफ द बिल्डर प्रॉक्टर डेंसिटी, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, ये सब भी यूज करते हैं। सो बेटर ऑप्शन डीसीपी, डायनामिक कॉन पेनिट्रेशन टेस्ट। वो एक सॉफ्टवेयर है, वो टेस्ट किया तो वो एस ग्राफ के हिसाब से सीबीआर वैल्यू हमको मिल जाएगा। वो बेटर ऑप्शन है, वो नया मेथड है, वो सम बिल्डर्स यूज करते हैं, उसको भी सीख सकते हैं इसमें। और सॉइल कॉम्पेक्शन 100% रहना है, मतलब स्टैग्नेंट वाटर नहीं रहना है। बाद में सॉइल कॉम्पेक्शन होने के बाद हम लोग जीएसपी यूज करते हैं, सम बिल्डर्स डेब्रिस भी यूज करते हैं। वो डेब्रिस भी डाल के उसके ऊपर जीएसपी यूज करते हैं, मतलब कॉस्ट सेविंग, वो सभी पार्ट ऑफ अ कॉस्ट सेविंग। थोड़े लोग सोचेगा वो डेब्रिस डालेगा तो क्रैक आएगा, मतलब प्रैक्टिकली करने के बाद वो अवॉइड हुआ है, क्रैक्स भी नहीं आया। प्रेजेंट मेथड जो कर रहे हैं, डेब्रिस वी कैन यूटिलाइज इन बेसमेंट, लोअर बेसमेंट फ्लोर, some thickness we can 100 or 200, we can use debris in lower basement for cost saving। वो एक, वो होने के बाद हम लोग जीएसपी एक लेयर उसमें भी स्लोप में रख के, वीडीएफ होने से पहले हम लोग क्या क्या करना है, और हमारा ड्रेन आउटलेट्स पाइप्स जो भी आता है, चेम्बर्स, बाद में पिट्स, कारवाशम्स, सभी लोकेशन एज पर ड्राइंग आ रहा है कि नहीं, स्लोप्स, स्लोप्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो हम लोग पाइप फिक्स करने के बाद एक चेम्बर से एक चेम्बर हम लोग वाटर वाटर डाल के स्लोप टेस्ट करना है, तो स्पिरिट लेवल में स्लोप चेक करके लेना है बिफोर कंक्रीटिंग। बाद में वो होने के बाद, पाइप फिक्स होने के बाद, चेम्बर वो सभी होने के बाद, सभी बराबर लेवल होने के बाद, एलडीपी शीट ले करके, एलडीपी शीट लैपिंग किधर किधर डालना है। बाद में कॉलम के पास हम लोगों को फोम शीट यूज करना है। बाद में एक्सपांशन जॉइंट आएगा, उधर कौन सा क्या मेथड में यूज करना है। बाद में वो होने के बाद बुल लगाना है, रीइंफोर्समेंट, नॉमिनल रीइंफोर्समेंट लगाना है। बाद में पैनल फिक्स करने के बाद कितना साइज का पैनल डालना है एज पर स्टैंडर्ड, कौन सा, मतलब कितना साइज का डालना है, कौन कैसा प्लान करना है पार्ट, ये पार्ट डालने के बाद अल्टरनेटिव कैसा डालना है। वो सभी होने के बाद हम लोग कंक्रीट डालने डालने के टाइम वो कितना स्लम्प रहना है। बाद में वो डालने के बाद को कितना टाइम में फिनिश करना है, कौन सा टूल्स यूज करना है, कितना टाइम तक वैक्यूम यूज करना है, बाद में फ्लोटर कैसे चलाना है। वो सभी हम लोग ये वीडीएफ फ्लोरिंग में जानकारी जान सकते हैं। बाद में वीडीएफ वीडीएफ में रैंप रैंप इन केस रैंप है, उसमें ब्रूम फिनिश करना है, रफ। बाद में वो रफ फिनिशिंग, बाद में एल एंगल फिक्स करना है आपको। अगर एकदम से फ्लैट लेवल है, बाद में रैंप चालू हुआ, ड्रेन आएगा, ड्रेन में हमको ग्रेटिंग्स फिक्स करना है। मतलब हम लोग एमएस पाइप्स और एमएस एल एंगल 32 by 32 ऐसा यूज करके उधर ही इनोसी रेडी करके ग्रेटिंग फिक्स करके हम लोग ये चालू कर सकते हैं। बाद में हम लोगों को क्रैक अवॉइड करने के लिए क्या क्या करना है, बाद में फिनिशिंग कैसा करना है, बाद में ग्रू कटिंग कितना करना है, कितना थिकनेस रहना है, कब करना है, वो सभी इसमें जानकारी ले सकता है। बाद में चेम्बर कवर फिक्स करना है, उसका कवर कवर फिक्स करने के बाद पीडीएफ करना पड़ता है, वो कवर क्लीनिंग, वो सभी वाटर प्रूफिंग अंदर का, वो सभी ये टॉपिक में हम लोग सीख के ले सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड। तो जिप्सम वर्क। हम लोग मेनली जिप्सम वर्क, हम लोग इश्यूज फेस किया था कैसा, मतलब हम लोग सीलिंग में प्लास्टरिंग कर सकते हैं, प्लास्टरिंग दैट मच वी कैन नॉट कंट्रोल। हम लोग इश्यूज क्या फेस किए थे, मतलब हम लोग सीलिंग का लेयर प्लास्टरिंग जो है, आफ्टर हैंडिंग ओवर, वो मतलब लेयर बाय लेयर गिर के इश्यूज राइज हुआ था। तब अभी हम लोग नया मेथड क्या है,
जो ऑलमोस्ट ऑल बिल्डर्स जो यूज कर रहे हैं, जिप्सम जिप्रॉक वर्क, इसका बॉन्डिट और ये सेंट गोबेन का जिप्रॉक, वो मेथड है। वो जिप्सम वर्क जो लाइट वेट मटेरियल है, बाद में वो पूरा स्ट्रांग है। बॉन्डिट अप्लाई करने का, बाद में अप्लाई करके जिप्रॉक, ये हम लोग कितना थिकनेस यूज करना है, बाद में वो फिनिशिंग होने के बाद उसका ऊपर कैसा कोटिंग, वो प्राइमर लगा के पट्टी पेंट, वो सभी नया मेथड है। वो सभी ये टॉपिक में हम लोग जानकारी ले सकता है। बाद में नेक्स्ट बॉक्सिंग, जिप्सम बॉक्सिंग। जिप्सम बॉक्सिंग करने के लिए और फायर बॉक्सिंग हम लोग करते हैं, फॉल सीलिंग करते हैं। बाद में जिप्सम बॉक्सिंग के लिए हम लोग कटिंग कैसे करना है, कौन सा टूल यूज करना है, बाद में उसका जॉइंट वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल जॉइंट कैसा करना है, स्क्रूविंग कितना डिस्टेंस में रहना है, 1 फीट। बाद में हमारा ये फाइबर स्ट्रिप आता है, स्ट्रिप लगाना है उसमें कॉर्नर में टू अवॉइड क्रैक्स। बाद में फॉल सीलिंग आता है, फॉल सीलिंग में हम लोग ये बाद में बालकनी एरिया, एक्सपोज्ड वेदर एक्सपोज्ड एरिया में एमजीओ बोर्ड यूज करते हैं, मैग्नीशियम सिलिकेट बोर्ड्स। बाद में ये जिप्सम बोर्ड यूज करते हैं हमारा फायर लाइन पे। फायर लाइन में कैसा करना है, बाद में टॉयलेट एरिया में ग्रिड ग्रिड सीलिंग आता है। ग्रिड सीलिंग, ग्रिड चैनल फिक्स करने के बाद उसमें 600 बाई 600 वो हमारा ग्रिड ग्रिड प्लेट्स आता है, वो लगाते हैं। हाई लेवल कैसा फिनिश रहना है, बाद में हाई लेवल होने के बाद कैसा लगाना है, सभी ये टॉपिक में हम लोग जानकारी ले सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। सो स्नैगिंग, स्नैगिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अभी सभी वर्क कंप्लीट हो गया, हमारे पास पूरा कंप्लीट वर्क है। अभी जो है नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप हमको क्या करना है, वो वर्क फ्लैट को हैंड ओवर देने के लिए रेडी करना है। मतलब क्लाइंट आके रुकने जैसा फ्लैट रेडी करना है, तो हम लोग स्नैगिंग, ये स्नैगिंग बोलते हैं। स्नैगिंग के लिए हम लोगों के पास ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। हमारा फर्स्ट फर्स्ट स्टेप है डोर एंड विंडो क्लियरेंस स्नैगिंग। डोर एंड विंडो क्लियरेंस के लिए क्या करना पड़ता है, हमको पहले सीमेंट वर्क जो भी है फ्लैट के अंदर का पूरा कंप्लीट रहना है, हाउसकीपिंग करके रेडी रखना है। डोर का इनकेस 2.1 1 मीटर मेन डोर ओपनिंग है, उसका एग्जैक्ट साइज चेक करना है। डोर जाम का राइट एंगल, पहले टूल्स, जो भी टूल्स, राइट एंगल, स्पिरिट लेवल, मेजरमेंट टेप, सभी रख के लेना। वो लग के हिसाब से 3 जगह पे डोर, टॉप, मिडिल, बॉटम, मेजरमेंट चेक करो, हाइट चेक करने का। बाद में राइट एंगल एग्जैक्ट जाम का राइट एंगल रहना है। इफ इन केस राइट एंगल नहीं है, फिर रेक्टिफाई करने का। बाद में रेक्टिफाई करने के बाद ही हम लोग अलो करना है डोर फिक्सिंग, डोर फ्रेम फिक्सिंग के लिए। डोर का हो गया। इन केस फ्लोर में अभी हम लोग क्या करना है, स्नैगिंग के टाइम फर्स्ट डोर विंडो क्लियरेंस के पहले हम लोगों को टाइल का, वॉल टाइल का हॉलो साउंड चेक करके, इफ इन केस मोर देन 20% हमको मिल रहा है, तो हम लोग, फ्लोर टाइल है तो वी कैन सीमेंट स्लरी से थोड़ा रख के, गैप है तो वो थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं, सीमेंट स्लरी डाल के उसको फिलिंग किया तो थोड़ा कम हो सकता है। इफ adhesive यूज, वी हैव टू रिप्लेस दैट टाइल्स ओनली। सो ये स्नैगिंग का फर्स्ट पार्ट है, डोर एंड विंडो क्लियरेंस। विंडो क्लियरेंस होने के बाद हमको नेक्स्ट स्नैगिंग आता है हमारा पेंटिंग क्लियरेंस। पेंटिंग क्लियरेंस में हम लोग क्या करना है, एक हॉलोजन लाइट रख के
हमको चेक करना है अंडुलेशंस, कॉर्नर लाइन डिफरेंस है, बाद में पेंट पैचेस कुछ भी है तो सेकंड स्नैगिंग में हम लोगों को क्लियर करके ये पेंट का स्नैगिंग देना पड़ेगा। बाद में थर्ड वाला हमारा आता है जॉइंट फिलिंग। जॉइंट फिलिंग में क्या होता है, टाइल्स का ग्राउट फिलिंग, बाद में सिलिकॉन सीलेंट फिलिंग, बाद में वो सभी फिलिंग बराबर हुआ है कि नहीं, वो मैच हो रहा है कि नहीं, वो सभी चेक करना है। बाद में सीलेंट होने के बाद वो बराबर है कि नहीं, पील ऑफ है या अंडुलेशन से लाइन नहीं है, वो सभी रीवर्क करना पड़ेगा। बाद में नेक्स्ट हमारा थर्ड आता है, फोर्थ वाला आता है इफ हैंडिंग वर्क सीक्वेंस। सीपी सैनिटरी फिक्स करना है। सीपी सैनिटरी फिक्स करने के बाद हमको वाटर टेस्ट करना है, अगर वर्किंग में है, एनी डैमेज है। बाद में पूरा माइक्रो क्लीनिंग करके हमको एनी डिफेक्ट्स इन टाइल्स, डैमेजेस that has to be identified and replaced, और एनी पेंट पैचेस इन वॉल, और हमारा डैमेजेस है जो भी। बाद में सीपी सैनिटरी वर्किंग में है, पोजीशन करेक्ट है, बाद में ईडब्ल्यूसी का लेवल बराबर है या नहीं, वो सभी चेक करके हमको स्टैगिंग का प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ता है। बाद में सीपी सैनिटरी लगाने से पहले वो हमको प्रेशर टेस्ट चेक करना जरूरी है। बाद में ईच एंड एवरी कॉर्नर हमको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि एनी डिफेक्ट शुड नॉट बी फाउंड टू दी क्लाइंट्स। सो ये स्नैगिंग का पार्ट है ये। और भी क्या क्या चेक करना है, कैसा चेक करना है, वो बता के देगा ये टॉपिक में। नेक्स्ट स्लाइड पे। सो लैब टेस्ट में मटेरियल टेस्टिंग, हमारा ये जो भी मटेरियल हो रिसीव होगा उसका टेस्टिंग का मेथड सभी हम बता के देंगे इसमें। जो एग्रीगेट जो जैसा रहना है, सैंड कैसा रहना है, क्या क्या टेस्ट करना है, बाद में आर्ट मिक्सचर का कैसा टेस्टिंग करना है, बाद में कंपैटिबिलिटी सीमेंट और ये आर्ट मिक्सचर का कंपैटिबिलिटी चेक करने का, ब्लॉक्स, बाद में एएसी ब्लॉक्स कैसा टेस्टिंग करना है, ब्रिक्स कैसा टेस्ट करना है, स्टील इनिशियली हमको थर्ड पार्टी जाने से पहले स्टील का कैसे चेक करना है, वो बेसिक बेसिक टेस्टिंग्स वो सभी चेक कर सकते। मेनली बाद में टाइल्स का क्या क्या टेस्ट कर सकते हैं। बाद में एल्यूमिनियम वेंटिलेटर आएगा, उसका एज पर स्टैंडर्ड सेक्शंस सेक्शंस नंबर रहेगा, उसके हिसाब से मेजरमेंट, बाद में ड्राइन आउटलेट्स वो सभी चेक करके लेने के लिए वो स्टैंडर्ड एक ड्राइंग है, उसके हिसाब से स्टैंडर्ड ड्राइंग्स के हिसाब से चेक कर सकते हैं और लैब टेस्टिंग का मटेरियल का। बाद में यूपीवीसी आपका विंडो, डोर्स, ग्लास वो सभी कैसा चेक करना। बाद में सीपी सैनिटरी आएगा, उसका डैमेजेस फाइंड आउट करना पड़ेगा। बाद में डोर डोर्स आएगा, डोर शटर, वुड वर्क्स, उसका भी हम लोग टेस्टिंग कैसा करते हैं ये टॉपिक में हम लोग सीख के ले सकता है। बाद में कैलिब्रेशन कैसा करेंगे, कैलिब्रेशन हम साइट में ही ऑटो लेवल का, स्पिरिट लेवल, ये सभी का कैलिब्रेशन कैसा करते हैं, मतलब बेसिक नॉलेज ऑफ टेस्टिंग वो सभी इसमें सीख के ले सकता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो माइवन शटरिंग, माइवन शटरिंग में हम लोग ये देखेंगे कैसा सेटिंग होता है, क्या सीक्वेंस है माइवन का, मटेरियल कौन सा यूज होगा। बाद में कैसा हम लोग चेक कर सकते हैं एज ए क्वालिटी इंजीनियर, मार्किंग होने के बाद में रीइंफोर्समेंट का चेकिंग, बाद में किधर किधर फॉल्ट मिल सकता है हमको, किधर किधर मिस्टेक्स हो जाएगा, एज पर फर्स्ट सेटिंग होने के बाद नेक्स्ट टिपिकल चेंजेस आएगा, उसमें क्या क्या चेक करके लेना है। ये सभी हम लोग ये माइवन शटरिंग में देख सकते हैं। बाद में माइवन का मटेरियल कैसा रहना है, उसका मेंटेनेंस कैसा करना है, बाद में किधर किधर पैनल कौन सा मटेरियल है, वो सभी
हम लोग इसमें सीक्वेंस वाइज चेकिंग का बाद में ये सभी जानकारी ले सकता है माइवन शटरिंग में। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। तो पावर टूल्स कंस्ट्रक्शन में जो भी हम लोग टूल्स यूज करते हैं उसके बारे में ये टॉपिक है। कंस्ट्रक्ट पावर टूल्स बोल के पावर टूल्स जो भी हम लोग जो भी ग्राइंडिंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन, चिपिंग मशीन, किधर क्या क्या यूज कर रहे हैं, कैसा उसका पार्ट्स, क्या क्या यूसेज है इसका, कटिंग मशीन, सेफ्टी वाइज और क्वालिटी वाइज हम लोग को जानकारी रहना है ये टूल्स किधर किधर यूज होता है, क्या क्या काम के लिए यूज होता है, मतलब को उसका पार्ट्स पार्ट्स वाइज उसका बिट, वो सभी जानकारी एज अ क्वालिटी इंजीनियर रखना है। ये एक टॉपिक अच्छा टॉपिक है। इसके इसमें मैं एक्सप्लेन करेगा ये जो जो टूल्स यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन में। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो रोड वर्क रोड वर्क में आपको सीसी रोड, सीमेंट कंक्रीट रोड में क्या क्या सीक्वेंस होता है। फर्स्ट स्टार्टिंग से पहले सोलिंग, बाद में मुरम फिलिंग, बाद में एग्रीगेट्स एग्रीगेट्स फिलिंग, बाद में उसके बाद हम फिर से मुरम फिलिंग, कितना लेयर फिक्स कर फिलिंग करना है, बाद में कैसा कॉम्पैक्शन करना है, टेस्टिंग कैसा करना है, और कौन सा साइज का एग्रीगेट्स यूज होता है, वो सभी जानकारी इसमें जान सकते हैं हम लोग। बाद में कैसा मेथड, कौन सा मतलब सीक्वेंस कैसा है, किसके बाद क्या करना है, बाद में एक पैनल होने के बाद कितना और जॉइंटिंग में क्या करना है, बाद में ग्रू कैसा फिनिश करना है, बाद में कौन सा ग्रेड कंक्रीट यूज करते हैं, बाद में इसको कैसा फिनिशिंग करते हैं, बाद में जो मेथड जॉइंट पैनल टू पैनल जॉइंट में कैसा हम लोग पाइप लगा के बाद में कॉटन लगा के उसके मूवमेंट के लिए हम लोग ना ये वो रोड का मूवमेंट के लिए व्हीकल मूवमेंट होने के बाद ये फिक्स किया तो मूवमेंट से क्रैक्स अवॉइड कर सकते हैं। वो सभी मेथड में आप लोग देख सकते हैं ये रोड वर्क में, कि ये सीक्वेंस वाइज हम लोग सीख सकते हैं इसमें। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो एक्सपांशन जॉइंट नॉर्मली एक्सपांशन जॉइंट बिल्डिंग में एज पर स्टैंडर्ड 30 मीटर विद इन 30 मीटर रहना है, 30 मीटर के अंदर एक्सपांशन जॉइंट देना है। वो सभी स्टैंडर्डाइज्ड ये प्रोसेस है। ये एक्सपांशन जॉइंट में बिल्डिंग टू बिल्डिंग जॉइंट, बाद में मेजरली बिल्डिंग से पोडियम जॉइंट रहता है, बाद में ये जॉइंट्स कैसे फिल कर सकते हैं, कितना थिकनेस का जॉइंट छोड़ना है, बाद में जॉइंट वो अपर बेसमेंट लोअर बेसमेंट, अपर बेसमेंट में और ग्राउंड फ्लोर में जॉइंट एक्सपेंशन जॉइंट आएगा तो वो कंक्रीट लेवल में ही हम लोगों को जॉइंट से आउटर साइड हम लोग स्लोप रख के लेना है। बाद में एक्सपेंशन जॉइंट ट्रीटमेंट का मेथड है, उसमें क्या क्या यूज करते हैं। और नॉर्मली शाली टेक्स्ट बोर्ड, सिल्फ्लेक्स बोर्ड आएगा, वो कौन सा हाई डेंसिफाइड सिल्फ्लेक्स बोर्ड आएगा, वो सभी मटेरियल कौन सा यूज करना है, मटेरियल लगाने के बाद हम लोग ट्रीटमेंट कैसा करते हैं, वो कब करना है, और ट्रीटमेंट के लिए मेथड डिफरेंट मेथड है। बाद में टेरेस में एक्सपेंशन जॉइंट है तो टीपीई शीट आएगा, वो सीक्वेंस कैसा है, सरफेस बिफोर सरफेस कैसा सरफेस प्रिपेयर करके लेना है, बाद में उस टीपी शीट लगाने के बाद प्रोटेक्शन कैसा करना है। बाद में बेसमेंट में सभी बेकर रॉड, बाद में हमारा सीलेंट, पॉलीसल्फाइड और पॉलीयूरेथेन। पॉलीयूरेथेन नॉर्मली हम लोग एक्सपोज्ड सरफेस में, वेदर एक्सपोज सरफेस में यूज कर सकते हैं। बाद में पॉलीसल्फाइड हम लोग मीन्स लोअर बेसमेंट अपर बेसमेंट में ये पॉलीसल्फाइड, बाद में उसमें
ये हमारा जियो टेक्सटाइल लगा के वीडीएफ करने के बाद वो हम लोगों का लीकेज एक्सपेंशन जॉइंट का अवॉइड कर सकते हैं। बाद में बॉटम में एक एक साइड स्क्रूइंग करके जिप्सम बोर्ड लगाने का वो सभी मेथड एक्सपेंशन जॉइंट में आप लोग सीख के ले सकते हैं। और ये अच्छा टॉपिक है, आप लोग इसमें जानकारी ले सकते हैं। ओके, कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं ये टॉपिक। बाद में जॉब जॉब अपॉर्चुनिटीज, आप अगर फ्रेशर है, जॉब अपॉर्चुनिटी फ्रेशर है तो बेटर आप एग्जीक्यूशन में 1-2 साल काम करके क्यूसी में आया तो आपका अच्छा मतलब नॉलेज मिलेगा। बाद में आप अच्छे से मतलब ग्रो हो सकते हैं। इनकेस फ्रेशर में ही आप क्यूसी में ज्वाइन हुआ तो अभी एज ए पार्ट ऑफ क्यूसी कॉन्ट्रैक्टर साइड क्या रहेगा आपको, खाली एक एक कॉन्ट्रैक्टर कंपनी में आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर में खाली मटेरियल, बाद में आरएमसी मेंटेन करो बाद में ये हमारा जो भी रेक्टिफिकेशन वर्क है वो सभी वो करना पड़ता है, वो मिक्स डिजाइन करने हैं। बाद में आप लोग और बिल्डर्स और क्लाइंट साइड आप काम करना है तो आपको टोटल और एंड टू एंड हैंड ओवर देने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, पूरा जानकारी रहना पड़ता है। ईच एंड एवरी मटेरियल, ईच एंड एवरी वर्क सीक्वेंस वाइज आपको जानकारी रहना पड़ता है। आपको जो भी वर्क चल रहा है, यानी फिनिशिंग वर्क और स्ट्रक्चर वर्क और यानी न्यू मेथड, आपको जानकारी रहना है उसमें क्या डिफेक्ट कर रहा है, सीक्वेंस स्किप कर रहा है, वो क्या क्या मिस्टेक्स कर रहा है, वो सभी आइडेंटिफाई करने के लिए आपको आना पड़ेगा। आपको वो करना है तो आपको क्या करना है, ये जॉब अपॉर्चुनिटी तो क्यूए क्यूसी का बहुत सारा बहुत सारा मिलेगा आपको। साइट इंजीनियर में आपको बहुत लोग मिलेगा पर क्यूए क्यूसी में कम लोग है। ऐसे क्यूए क्यूसी तो अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगा इनकेस नॉलेज अच्छा है तो सो ये अच्छा प्लेटफॉर्म है क्यूए क्यूसी का। तो कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। Does this- हेलो। हेलो, सावन सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर मैं सुनील कुमार बात कर रहा हूँ, बोकारो स्टील सिटी। हाँ बोलिए सुनील जी। सर ये आफ्टर कोर्स कंप्लीटेड क्यूए क्यूसी में भी प्लेसमेंट है क्या सर आपके यहाँ से? हेलो जी, हेलो बोलिए। सर, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी है क्या आपके यहाँ से? अ, मतलब जॉब अपॉर्चुनिटी, हाँ या राइट। अगर आप पे सर्टिफिकेट लिया तो ज्यादा चांसेस ऑफ परसेंटेज चांसेस ऑफ है जॉब मिलने का, ऐसा कोर्स किया है बोला तो। इसका सर कॉस्ट ड्यूरेशन कंप्लीट कोर्स करने का क्या है डे, वो सर वैलिड डे कितने मंथ का है? सॉरी टू इंटरप्ट सुनील जी, आपको जो भी कोर्स रिलेटेड उसका पेमेंट प्लेसमेंट जो भी पूछना है ना, वो आप प्रोट्रेनी के बंदों से पूछ सकते हैं। और कोर्स का कंटेंट लेके जो भी पूछना है ना, वो आप एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। ये कोर्स में कोई प्लेसमेंट लिंक नहीं है। प्लेसमेंट लिंक कोर्सेज आर प्राइस्ड अराउंड 35,000 प्लस। तो अगर वो कोर्स आपको चाहिए तो आपको पोस्टर्स में फोन नंबर मिल जाएगा। आप हमारा कोई भी बंदा आपको आंसर कर देगा। ओके, थैंक यू सर, प्लीज टेक। ओके ओके सर। हेलो, Hello, am I audible? Hello, हेलो, या टेल। I just put a question in the chat box. Would you please read it? योर नेम प्लीज। Pramanand Prasad.
Praman, does this course covers all aspects of Yeah, it is. It covers every means you are QA/QC engineer or technician. Um, I just wanted to know. I'm going through the course for someone. No, Yeah. I know all the things, but I'm looking for it. So I went I went through the whole your webinar, we can call it. So I Yeah. went through all the webinars, Mm-hmm. and I found it I found Sorry. it very convincing, but everything was so hasty and less detailed. I mean, everything was hush hush hush. Yeah, yeah. It is just a Maybe it is brief for me. description. No, no. It is just a brief description about. Detailedly, will explain each and every day. Each day, it will be one topic will be taken and explained to you. Okay, okay. I think for the demo, it's quite nice. So I'm looking for someone, and I think this is quite a nice course. Yeah. So I was asking for I was asking for someone, and would you please tell me, is this sufficient for a QA QC lab technician and QA and QC engineer? Would it cover Yeah. everything, all aspect of it? Yeah, I'll expect Hello. mainly lab technicians will be taking care of material receiving and testing of materials. Mainly lab technician will do. Main as a QA/QC engineer, we have to see all the sequence of work and material testing, and each and sequence will be followed properly or not. That will be covered in this topic. And also lab testing, material lab testing will be there, no? I'm just Hello. asking, would you Uh, guys, would you guys cover everything of it? Na? Would you leave any topic where there are something that would not be taught by you guys? Uh, would you no, you no, no, would no. you would cover everything? Yeah, I will cover every topic. I will cover it. See, this is the confirmation I wanted. So, okay, thank you. Thank you so much. Yeah, yeah, yeah. Thank you. Any questions?